Hello friends, welcome to the Pharmacist Pro. Now in this video, we are going to learn about the interview questions and answer on a TLC. So most of the people are asking about the TLC questions and answer. Now in this video, we are going to cover what is the principle of thin layer chromatography, what type of material used for the stationary phase in a TLC, how to develop a TLC chamber, how to do spotting on TLC plate, what should be the distance between two spots, what is the retardation factor in a TLC, and how to calculate RF value in a TLC. These 7 questions we are going to cover in this video. But if you want to know more questions and answers, so you can visit to pharmacy.com website. In that interview section, you will get more questions and answers. Not only TLC, there are many other instruments also I have covered, like HGC, HPLC, digitization, KF, potentiometry, TT, fiability, like this. So many questions and answers I have covered in that. Maybe and principles of different instruments also are there. So the ones visit to pharmacy.com website also. Now, uh, uh, before starting this video, I want to say one thing. Most of the subscribers are asking me to explain in Hindi language also. So I will try Hindi language also in this video. So by reading we can understand English language, but if I'll explain in Hindi language, so it will be good for the freshers as well as the persons who is not understanding properly English. So they also can take a benefit by explaining in Hindi language. So let's get start. So the first question is, what is the principle of thin layer chromatography? So thin layer chromatography का principle क्या है? Thin layer chromatography is a separation technique in which a stationary phase consisting of appropriate material is spread in a uniform layer on a support of plate. The plate may be glass, metal और plastic. So TLC क्या है ना, एक सेपरेशन टेक्निक है. जैसे कि हमारा HPLC होता है, जो डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट करता है, वैसे TLC में भी हम लोग स्पॉट्स को या फिर आपका जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो सेपरेशन टेक्निक इन विच स्टेशनरी फेज कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल. जो आपका स्टेशनरी फेज होता है उसमें एक मटेरियल होता है जो कि जिसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं, वो यूनिफॉर्म लेयर में स्प्रेड किया हुआ रहता है. और वो जो मटेरियल है वो प्लेट पे कोटिंग किया रहता है, या फिर हम उसको अपने लेबोरेटरी में बना सकते हैं, या फिर रेडीली अवेलेबल जो मार्केट में होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो प्लेट होता है ये हम मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं जो रेडीली अवेलेबल होता है. सो इन दिस केस you can easily understand the stationary phase which is used in a TLC plate is uniformly spread on a glass plate or metal plate, right? So next question is, what type of material is used for a stationary phase in a TLC? So the TLC having many stationary phases, but generally in industry mostly these two are used, that is silica gel and alumina. जनरली क्या होता है ना, इंडस्ट्री में दो टाइप की जो सिलिका जेल और एल्यूमिना, ये जो स्टेशनरी फेजेस है ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. बट ऐसा डिपेंड नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दो ही हो. इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग स्टेशनरी फेज ऑल्सो यूज़ किए जाते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू डेवलप अ TLC चैम्बर. TLC चैम्बर डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम भी होता है. तो चलो हम इसको सीख लेते हैं थोड़ा. प्रिपेयर द चैम्बर बाय लाइनिंग द वॉल्स विद अ शीट और अ फिल्टर पेपर. Pour the mole phase into a tank. Saturate the filter paper in a process. Add sufficient mole phase to form a layer of a solvent 5 to 10 mm deep. Close the chamber with lid and allow to saturate for 1 hour at room temperature. तो आपका जो TLC चैम्बर होता है उसमें हमको एक पेपर शीट रखना है या फिर फिल्टर पेपर रखना है, या तो फिर आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो. उसमें आपको थोड़ा मॉल फेज ऐड करना है और उसमें आपको आपका जो पेपर है वो रख देना है. वो आपको डीप नहीं करना है, खाली ऊपर ही रखना है जिससे कि आपका सैचुरेट हो जाए तो आपको पता चले. तो उसमें और भी आप थोड़ा मोर पेज ऐड करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ऐड करना है. बाय साइड वाला को आपको टच नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बॉटम पे आपको मोल पेज ऐड करना है. और आपका जो फिल्टर पेपर है वो उसमें डीप होना चाहिए. मोल पेज कितना ऐड करना है, आपका फिल्टर पेपर कम से कम उसमें 5 से 10 mm डीप होना चाहिए. या फिर आपका TLC जो है, और TLC तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सैचुरेट करने के लिए आपको फिल्टर पेपर यूज करना पड़ता है. तो आपका जो फिल्टर पेपर है कम से कम आपका 5 से 10 mm उसमें डीप होना चाहिए मॉल पेज में. इतना आपको मॉल पेज उसमें ऐड करना है. उसके बाद फिर आपको चैम्बर को क्लोज कर देना है और उसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सैचुरेट होने के लिए रख देना है. इस तरीके से आप TLC चैम्बर डेवलप कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाउ टू डू स्पॉटिंग ऑन अ TLC। TLC पे स्पॉटिंग कैसे करें? ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द प्लेट विद अ पेंसिल, डू नॉट यूज पेन, approximately 1 centimeter away from the bottom, do not use excessive force while spotting. The spot should be applied in a small time interval, around 1 minute interval. So while spotting, you should take care that you should use pencil only. You should not use pen. तो जनरली हम लोग जब भी पेंसिल को प्लेट को ड्रॉ करते हैं तो पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप पेन यूज़ करेंगे तो आपका जो इंक है उसमें आपका जो मॉलपेज है उसमें डिजॉल्व हो सकता है और उसके भी आपको स्पॉट मिल सकते हैं जो कि जरूरत नहीं होते, बट आ जाएंगे आपके TLC प्लेट पे तो आपका TLC प्लेट खराब हो सकता है। तो जो लाइन है वो कहाँ पे ड्रॉ करनी है? सो लाइन शुड बी ड्रॉ अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम। आपको जो बॉटम है वहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर अप साइड आपको ड्रॉ करना है। ओके, डू नॉट यूज एक्सेसिव फोर्स वाइल स्पॉटिंग। आपको स्पॉटिंग करते समय ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है स्पॉटिंग के लिए। अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपके नीडल की टिप की वजह से जो कोटिंग मटेरियल होता है प्लेट पे वो निकल सकता है, या तो फिर आप जब आपका नीडल को जोर से प्रेस करेंगे तो फोर्सफुली उसमें से लिक्विड बाहर आएगा और वो आपका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो भी होगा वो प्लेट पे इधर उधर ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। तो आपको एक स्पॉट के जगह पे आपको 2-3 स्पॉट भी आ सकते हैं। सो इसलिए आपको फोर्स अप्लाई नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से आपको स्पॉटिंग करना है। द स्पॉट शुड बी अप्लाइड इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड 1 मिनट। तो इंटरवल में क्यों अप्लाई करना है? अगर आप कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्पॉट है वो आपका जो कोटिंग मटेरियल प्रॉपर्ली सक नहीं कर पाएगा और आपका जो स्पॉट है वो बड़ा बड़े साइज में होता जाएगा, मतलब उसकी साइज जो है वो बढ़ती जाएगी अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे। और जब भी आपका मॉल पेज में आप रखेंगे तो जब मॉल पेज उसके साथ कैरी करेगा स्पॉट को तो आपको बड़ा साइज वाला स्पॉट मिलेगा, या तो फिर आपका जो स्पॉट है वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा TLC प्लेट पे, एक लाइन पे पूरा लंबा लंबा स्प्रेड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर स्पॉटिंग करोगे तो आपका जो RF वैल्यू है आपको नहीं मिल पाएगा प्रॉपर तरीके से। ओके, और दूसरे एंगल से अगर देखेंगे, अगर आप स्पॉटिंग करते हो 1-1 मिनट के इंटरवल में तो क्या होगा, आपका जो स्पॉट है एक ही जगह पे अगर आप स्पॉटिंग करोगे तो वो जो कोटिंग मटेरियल है आपको लिक्विड को सक कर लेगा, जो स्टैंडर्ड है या फिर सैंपल जो भी आप स्पॉटिंग कर रहे हो उसको सक कर लेगा। फिर अगर आप 1 मिनट के लिए वेट करते हो और उसके बाद फिर अप्लाई करते हो, क्योंकि 1 मिनट में आपका जो मटेरियल है वो सक हो जाएगा और फिर वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा प्लेट, फिर से आपको थोड़ा सा आपको उसको स्पॉटिंग करना है, वो फिर से सक करेगा। इस तरीके से अगर आप करते रहोगे तो आपका जो स्पॉट है वो लिक्विड जो है एक ही जगह पर रहेगा, आपको शार्प जो स्पॉट है वो मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक ही स्पॉट पे होने की वजह से आपको जो मॉल पेज में जब प्लेट रखेंगे तो आपको अच्छे से स्पॉट मिलेगा। इसको आपको पिक करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने आर वैल्यू निकालने के लिए ईजी होगा। एरर की स्पॉट आपको मिल सकता है, आपका TLC अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप स्पॉटिंग कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यही पे होती है और एनालिस्ट सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स इसी जगह पे करते हैं कि स्पॉटिंग करने का तरीका उनको प्रॉपरली पता नहीं होता है, या फिर जल्दबाजी में करते रहते हैं कि जल्दी से ख़त्म करना है करके जल्दी स्पॉटिंग करते रहते हैं। और बाद में जब आप TLC प्लेट देखते हैं तो कुछ स्प्रेड हुआ लंबा लंबा एक स्पॉट आ जाता है जो कि सही नहीं लगता है, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होती है, या फिर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा या फिर उसको डिस्कार्ड करके दूसरा प्लेट बनाना पड़ता है इंश्योरेंस लेके, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्पॉटिंग अच्छी तरह से सीखना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्पॉट। तो 2 स्पॉट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो जनरली ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन पर्पज मैंने ये क्वेश्चन ऐड करके रखा हुआ है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पूछे आपको, बट आप यहाँ अपने इन्फॉर्मेशन के लिए रख सकते हो। तो जो 2 स्पॉट होते हैं उसमें कम से कम आपका 10 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी शो किया हुआ है, नीचे 2 स्पॉट है उनके दोनों का डिफरेंस 10 mm शो किया हुआ है। तो आपका जो स्पॉट है वो दो स्पॉट के बीच का मिनिमम 10 होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 4 से 5 बैच एक ही प्लेट पे रन कर रहे हो तो भी आपका जो स्पॉट का डिफरेंस है वो मिनिमम 10 mm होना चाहिए। या तो फिर आपको स्पॉटिंग इस तरीके से करना है कि कम से कम 2 स्पॉट का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 10 mm होना चाहिए। या अगर आपके 4-5 बैच हो रहे हैं और उसमें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो या तो आप दूसरा प्लेट यूज़ करिए, ओके, या तो फिर sorry for the disturbance, my kid came in between, so that's why I distracted. So let's continue.
सो अगर आपके पास 4 से 5 बैचेस है तो आप दूसरा प्लेट यूज़ करिए। सेम प्लेट में आप उसको स्पॉटिंग मत करिए। अगर आप नज़दीक नज़दीक स्पॉट नियर नियर अगर स्पॉटिंग करेंगे तो आपका जो स्पॉट है वो मर्ज हो सकते हैं। इसकी वजह से हमको मिनिमम 10 mm डिस्टेंस रखना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर इन TLC? Retardation factor is the ratio of the distance, which distance from a point of application to the center of the spot and the distance traveled by the solvent front from the point of application. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे शो किया हुआ है और एक इधर पे सैंपल शो किया हुआ है। तो आपका जो स्पॉट आप करते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड का स्पॉटिंग करते रहते हो। यहाँ से लेके आपका जो मॉल पेज में डालने के बाद आपका जो TLC होता है वो मॉल पेज में डालने के बाद आपके स्पॉट को कैरी करती है और यहाँ तक आपका कैरी होता है मॉल पेज, सॉरी स्पॉट। उसके बाद फिर आपका मॉल फेज जो होता है और ऊपर थोड़ा जाता है। जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 70 to 80% जब मॉल फेज चला जाता है तो प्लेट को TLC चैम्बर से निकाल देते हैं। और जहाँ तक आपका मॉल फेज कैरी हुआ होगा वहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, वो ड्राई होने के बाद। ड्राई होने के लिए या तो फिर आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो या तो फिर आप ओवन में भी रख सकते हो। अगर आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया है ओवन में रख के ड्राई करना है तभी आप रखना है, नहीं तो आप रूम टेम्परेचर भी रख सकते हो क्योंकि जो मॉल पेज होती है वो वोलेटाइल होती है, ज़्यादातर वोलेटाइल लिक्विड होता है। इसलिए आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी आपका जो मॉल पेज का जो लिक्विड है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा और आप लाइन बाद में ड्रॉ कर सकते हो। इस टाइम पे भी आपको पेंसिल ही यूज़ करना हुआ है, राइट। सो यहाँ पे जो स्पॉट दिया गया हुआ है स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लेके जहाँ तक स्पॉट है ये डिस्टेंस, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ से लेके दूसरी लाइन जो मॉल पेज ड्रा हुआ है, मॉल पेज रन किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। अब स्पॉट कैसे पिक करना है ये भी इंपॉर्टेंट तरीका होता है। ये जो स्मॉल स्पॉट है मैंने इसको यहाँ पे अगर साइड में देखेंगे मैंने सर्कल में दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये स्पॉट हो गया आपका। इसको अगर हमको ड्रॉ करना है तो प्रॉपर तरीका ये होता है कि आपको सेंटर में उसको पिक करना है, ना कि नीचे ऊपर बाएं दाएं। ऐसे अगर आप पिक करेंगे तो आप सैंपल के लिए तो स्टैंडर्ड के लिए तो प्रॉपर तरीके से पिक करेंगे, लेकिन अगर आप सैंपल को नीचे या फिर बाएं दाएं पे पिक करते हो तो आपका RF वैल्यू चेंज हो सकता है। तो आपको जो रिजल्ट है वो एरर विथ एरर रिजल्ट मिल सकते हैं, विदाउट एरर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एरर रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ओके, इसके लिए उसको सेंटर में पिक करना जरूरी होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट RF वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं फार्मूला में दिया गया हुआ है। यहाँ पे भी हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग उसको रेशो कैलकुलेट कर रेशो निकालते हैं, और ये रेशो कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया हुआ है इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। सो RF वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइडेड बाई स्मॉल h। सो कैपिटल H होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड, और यहाँ से आपका ये जो स्पॉट लेके गया ऊपर ये हो गया आपका सॉल्यूट। ये जो आप इंजेक्ट करते हो इसको सॉल्यूट भी बोलते हैं। सो आपने जो सॉल्यूट इंजेक्ट किया था वो उसका स्पॉट यहाँ पे मिला आपको, और जो आपका सॉल्वेंट फ्रंट है उसका यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ किया हुआ है। जो आपका मॉल पेज है वो यहाँ तक रन किया हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और इसको सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैपिटल H जो है जो कि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है, और दूसरा जो लाइन है इसका अगर मान लीजिए सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो आपको करना होगा 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। जो आपको वैल्यू मिलेगा RF वैल्यू वो होगा 0 सेंटीमीटर, राइट। सो इस तरीके से आप आपका RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ये वीडियो में मुझे लगता है कि आपको अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिल सकते हैं, जो हमारा वेबसाइट है pharmacy.com, वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कवर किए हुए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। एंड इफ़ यू वांट टू more questions and answer, you must visit to pharmacy.com. Many questions I have covered there. And thanks for watching this video. And don't forget to subscribe and share the video. Thank you friends.